नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria Kojabu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. To all our viewers in Kerala, swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, vanakkam. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रदीप जी, The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Subscribe. When you subscribe to the icon out there, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Please do subscribe and please do send me your comments. So Pradeep ji, tragic accident at the Dubai Air Show. One Yes. Tejas has crashed. This is the second time that a Tejas has crashed in the last 5 years. Very, very sad. Whatever happened, I hope there will be a full inquiry as to what really took place. That, of course, is number one. And number two, the Prime Minister wants India to grow at 10%. 10%. He wants the GDP to grow at 10%. And apparently he has told Ms. Nirmala Sitharaman that all controls, etc., must go. Anything which is holding India back must go. That's what he has said. Also, India prepares for the visit of President Vladimir Putin. Vladimir Putin के visit के लिए सब लोग तैयार हैं और there are going to be lots and lots of defense deals signed, almost up to $100 billion. It's going to be huge. It's going to be really and truly huge. India-Russian relationship has been absolutely solid and very solid and sound. Message to the United States of America. Yes, yes. Message to President Trump that, hey, listen, you want to be friends with us, we are okay. You don't want to be friends with us, we are okay. Up to you. Aapke upar hai. As far as we are concerned, we are okay. Either way, we are absolutely okay. And Jawad Siddiqui, the one of the main accused in the Al-Fallah matter, वो जनाब उनका जो घर है उसने डेमोलिशन से बचा लिया है मध्य प्रदेश में, because there was that Mahu by the way is our artillery regimental center, Mahu in मध्य प्रदेश. तो जो Mahu cantonment है उन्होंने apparently 96 और 97 के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे कोर्ट में. तो कोर्ट ने कहा था लेटेस्ट डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसके हिसाब से 15 दिन का उनको स्टे मिल गया है. And then of course the case will go on. That's what's going to happen. And lots of other people have been arrested in the Red Fort blast who were involved in that same blast in which that doctor blew himself up and killed about 15 people. उसके अलावा 13 और लोग मर गए श्रीनगर में. वो डॉक्टर शाहीन जो हैं उनका एक पूरा नया नेटवर्क मिल गया है. सूरत वाले जो जनाब है उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क मिल गया है और उनकी तो खूब सेवा करी है कैदियों ने, सुनने में आया है. और कानपुर में शाहीन सैयद और एंटायर नेटवर्क ऑफ 18 to 20 जो वुमेन्स टीम जो जमात ए मोमिनात जो उन्होंने लॉन्च किया था जी, along with Masood Azhar's sister, so that everybody switched off their mobile and are on the run. So how long will they escape? Well, they'll be found eventually. Will somebody tell me please how many guests have joined, because I've been asking that question. Nobody seems to be reading it. Is everybody on holiday? I have sent you a message. Please reply. Please reply. Please reply. Thank you very much. So nice of you. So really nice of you. Thank you. Pradeep ji, the other thing also is that as far as we are concerned, it's really tragic that little boy, just because he could not speak Marathi, क्योंकि मराठी में नहीं बोल पा रहा था वो, उसको पीटा पकड़ के ट्रेन में, और मराठी लड़का है, उसको पीटा पकड़ के ट्रेन में, he got so traumatized, he was in shock, finally he committed suicide. ये क्या है भाई, क्या हो रहा है ये? Raj Thakre ji is a very dear friend of ours, but this is too much. He must come out with a statement and tell people, hey, listen, you can't do this. Let's be very clear. I mean, आप ये नहीं कर सकते साहब. You're beating up a person, a small child, because he's a Marathi and not speaking in Marathi. अरे भाई उसने सिर्फ इतना बोला, भाई साहब जरा आगे हो जाइए. That's it. That's all that he said in the train. थोड़ा सा आगे हो जाइए. And these guys turned around and said, मराठी में बोला, and beat him up. That's the little boy. You've just cost him his life. What are you doing? क्या पागल हो गए हो आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? But this is not done, Pradeep ji. Absolutely not done. Young life. And such a sweet little kid. Oh God.
Just because he is nicer looking than all of you? Is that why? क्योंकि आप सब लोगों से ये ज्यादा खूबसूरत है दिखने में, मैनर्स में, तमीज में, इसलिए आप लोगों ने इसको पीट दिया इतना पकड़ के, और घर जाकर के 2 दिन के बाद बेचारा इतना शॉक में रहा, उसके पिताजी के समझाने के बावजूद he took his own life. Unbelievable. This is terrible, absolutely terrible. Shaken. At the moment, we are joined by Dr. Aviral Malik of the Bharatiya Janata Party. Let's go straight across to him. Aviral Malik साहब, नमस्कार. नमस्कार 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 मलिक जी नमस्कार। जय हिंद सर, जय सिया राम, कैसे हैं? जी जय श्री राम, बिल्कुल मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। अच्छा डॉक्टर अविरल मलिक, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बाकी जितनी भी पार्टी हो, उन सब में एग्रीमेंट है, हर एक कोई। ये मुंबई की घटना है सर। मुंबई की घटना ये है कि ट्रेन में, लोकल ट्रेन में एक मराठी लड़का ही था, उसने जाकर के कुछ लोगों को बोला कि भैया जरा आगे हो जाओ। उन्होंने कहा कि मराठी में नहीं बोल रहा है, उन्होंने पीट दिया पकड़ के उसको कि मराठी में नहीं बोल रहा लड़का। एक्चुअली महाराष्ट्रियन लड़का था, उसको इतना पीटा पकड़ के, वो घर में आया, इतने शॉक में था, उसने आत्महत्या कर ली। आज जो मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित साटम साहब, उसने कहा है कि उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, इसका जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या है? कल मोर्चा भी ले जा रहे हैं, और कल मोर्चा भी लेके जा रहे हैं वो शिवाजी पार्क। आप ये बताइए अविरल मलिक साहब, ये कहां तक ठीक है? दिस इज नॉट डन। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? कि कोई मराठी में नहीं बोलेगा, आप उसको इतना पीट देंगे, उतना पीट देंगे, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अविरल मलिक साहब आप बताएं, आप प्लीज। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय तरीके से वॉयलेंस पूर्ण रूप से गलत है, और जिस प्रकार की घटना घटित हुई है निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मराठी और हिंदी का, और उसके साथ साथ लैंग्वेज बैरियर्स का, मैं समझता हूं सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भाषा बोलने का प्रयास करे, बोले, वो उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और अगर बात कर जाए मराठी की, तो निश्चित रूप से मराठी अत्यंत सम्मानित भाषा है। और अगर बात कर ली जाए इस देश के संविधान की, इस देश का संविधान सबको इजाजत देता है इस देश के किसी भी हिस्से में जाकर किसी भी भाषा का प्रयोग करने की। ये हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, मौलिक अधिकार है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए हिंदी की, इंग्लिश की, उर्दू की, मराठी की, पंजाबी की, बंगाली की, किसी भी भाषा में, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, कोई स्टेट हो, उस किसी भी स्टेट में किसी भाषा में कोई व्यक्ति बोल सकता है, जिस भाषा में वो बोलना चाहे, ये उसका मौलिक अधिकार है और सबका ये बेसिक राइट है। अगर इस राइट को कोई छीनता है और इस प्रकार की घटना एक तरीके से घटित होती है और वो वायलेंस करता है, उसको पीटा जाता है, तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है। हम सबका दुर्भाग्य है कि हम सबके रहते इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, और इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी जो वायलेंस को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, हम सब लोगों का बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से एनडीए का, हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार का, महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार की अगर बात कर जाए, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सरकार है, अजीत दादा पवार की सरकार है, एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। स्पष्ट हमारा मानना है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है, और मैं निश्चित रूप से इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं आपके माध्यम से। और जो घटना घटित हुई है, अविरल मलिक जी, मगर आप यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में आप यू गॉट द गवर्नमेंट, बीजेपी लेड सरकार है, आप मोर्चा क्यों ले रहे हो? आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपको एक्शन लेना चाहिए। आप शिवाजी पार्क में अमित साटम जी, मुंबई के अध्यक्ष, और पूरे लोग मिलकर इसका विरोध करते हुए शिवाजी पार्क में आप मोर्चा ले जा रहे हो। वी एक्सपेक्ट द होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को खुद एक्शन लेना चाहिए। अविरल मलिक जी जी नहीं, अभी घटना घटित हुई है, उसके बाद ये बात सामने आई है, बात उठाई गई है, मुद्दा उठाया गया है, अब मुद्दा बना है, निश्चित रूप से एक्शन होगा, 100% एक्शन होगा, एक्शन होना चाहिए। हम सब इस विषय के पक्षधर हैं, और मानवता के आधार पर बात कर ली जाए या संविधान के आधार पर बात कर ली जाए, कानून के आधार पर बात कर ली जाए, तो किसी रूप में कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना को टॉलरेट नहीं कर सकता, इस प्रकार की घटना को इजाजत नहीं दी जा सकती। इस भारत देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, अन्य लोग मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, तो सबका अधिकार है, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भाषा में बोलिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप जम्मू कश्मीर में जाके तेलुगु में बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन आपका अधिकार है, आप जिस भाषा में बोलेंगे वो आपका मौलिक अधिकार है, किसी भाषा में आप बोल सकते हैं।
तरीके से भाषा के आधार पे घटना घटित होना, वायलेंस होना, ये बेहद दुखद विषय है। Right, so let's welcome our old friend, our very dear old friend, मोहसिन हैदर साहब। उनका स्वागत है। मोहसिन हैदर साहब बहुत पुराने मित्र हैं हमारे कांग्रेस के। बहुत पहले वो समाजवादी पार्टी में भी हुआ करते थे। बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में जनाब इन्होंने जो मोर्चे लिए हैं बिल्कुल बेधड़क होकर के, साहस के साथ, जबरदस्त। सर एक शख्स है कांग्रेस के जो सड़क पे हमेशा रहते हैं। एंड वी आल्सो वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मोहसिन हैदर साहब, सीइंग यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और अशोक यादव जी, यू आर आल्सो वेलकम सर, वेलकम टू द शो सर। अशोक यादव जी ऑफ द समाजवादी पार्टी एट द मोमेंट विद फ्रॉम उत्तर प्रदेश विद अस। तो एट द मोमेंट वी हैव सत्यपाल मलिक जी's grandson, डॉक्टर अविरल मलिक फ्रॉम द बीजेपी जो अभी तक बोल रहे थे, माय ओल्ड फ्रेंड मोहसिन हैदर साहब एंड ऑफ कोर्स अशोक यादव साहब। मोहसिन हैदर साहब, मैं आपसे पूछता हूं जो सवाल प्रदीप जी ने पूछा। अरे भाई आप मेरी बात सुनिए, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको ऐसे प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, और वो मराठी था। क्योंकि उसने मराठी में नहीं हिंदी में बोला, आपने उसको इतना पीटा, घर जाकर के उसने आत्महत्या कर ली। अब अमित साटम साहब वैसे बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो शिवाजी पार्क में जाके मोर्चा लेके जा रहे हैं। प्रदीप जी ये पूछ रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, सब कुछ आपके पास है, तंत्र आपके पास है, प्रशासकीय तंत्र आपके पास है, पुलिस आपके पास है, अरेस्ट करो। क्या कर रहे हो आप? अब आप बताएं मोहसिन हैदर साहब, ये क्या है? मोर्चा ले जाने का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही बात आपने बताई। ये बहुत ही दुखदायक और बहुत ही घृणादायक जो बात हुई है। कितनी भी निंदा अगर ऐसी चीजों पे करे तो कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के वारदात बिल्कुल ये हमारे सर झुकने जैसी बातें हैं जी। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनको एक्शन लेनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति न करे। उनको चाहिए कोई भी हो, भारतवासी कोई भी हो, कि कहीं भी रहता हो, वो हमारे भाई है। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर कोई इस तरह का वाकया, ठीक है डिबेट हो सकता है, लेकिन इस तरह के हमला, और हमले में कोई नौजवान बच्चा, प्यारा सा बच्चा जो अपने आप को जो है इस तरह का महसूस करके, अपने आप को जो है बहुत ही लो महसूस करते हुए अगर इस तरह का कदम उठाया है, तो इस पर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जिनके हाथ में हुकूमत है, सत्ता है, जो कार्रवाई करनी चाहिए, खुलकर कार्रवाई करना चाहिए, बेधड़क करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि कोई भी हो सामने, कितना भी बड़ा शख्स हो, इस घृणा काम में जिन्होंने भी साथ दिया है, जिन्होंने इसका जो है सपोर्ट किया है, उसका हम विरोध जाएंगे, ऐसे खुलकर कहना चाहिए। इसमें जो है वो नौटंकी वगैरह नहीं करना चाहिए। कोई इसमें कोई, मैं समझता हूँ जो भी कोई भी इंसान जो इसको इंसानियत को समझने वाला इंसान, सियासी पार्टी तो छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी इंसानियत रखने वाला इंसान को समझने वाला आदमी ऐसी चीजों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा, ये मैं समझता हूँ। मोहसिन हैदर साहब, बात यह है कि वी शुड अप्रिशिएट वन थिंग, वर्षा गायकवाड़ जी ने एमआरसीसी की तरफ से स्टैंड लिया दैट वी विल नॉट अलाइन विद राज ठाकरे पार्टी, वी विल नॉट अलाइन विद एमएनएस, और खुलेआम वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा, बिकॉज इनके ऐसे एटीट्यूड से कि आप किसी वायलेंस को हाथ में लेते हो और भाषा और रिलीजन के नाम पर जो एक आतंक मचाते हैं उसके खिलाफ, I mean that is a fantastic decision, and first time you are fighting all the entire BMC elections on your own. But the most important thing is वर्षा गायकवाड़ जी खुलेआम ऐलान करना that we will not be with any alliance with MNS. प्रदीप जी, हाँ, ये मैं यही कहना चाहता हूं कि सियासी फायदा हो या नुकसान हो, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कोई भी इस तरह के जो हरकत करता हो उसे उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मान है और हम भी यही समझते हैं। लेकिन मोहसिन हैदर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो मोर्चा ले रही है शिवाजी पार्क में कल, उसका क्या मतलब हुआ सर? वो तो सरकार में है। आज मैं कहता हूं देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत सीधे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है सर वो। मतलब अगर आज अमित साटम जी ये बोल रहे हैं तो राइटफुली स्पीकिंग आपको मालूम है किस किस की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मेरी समझ के बारे, होम मिनिस्टर आप हैं, चीफ मिनिस्टर भी आप ही हैं, क्यों नहीं कर रहे सर मोहसिन हैदर साहब? वोट कुछ नहीं है, वोट राजनीति है, वोटों की राजनीति है।
वरना ये कहना चाहिए कि खुलकर बोलनी चाहिए भाई, इस तरह का अगर आप गलत समझते हो आप, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कार्रवाई आपकी जरूरत ही नहीं पड़ता, अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए था। जी अभी तक जो है ऐसे लोग जेल के अंदर होनी चाहिए, बंद होना चाहिए था। इस पे इस तरह की चर्चा भी उसके बाद हमारी चर्चा होनी चाहिए। जी ये बिल्कुल जो मासूम बच्चा है उसकी तस्वीर देख रहा हूं मैं, जी और इसका दर्द महसूस करता हो इसके परिवार वालों का, और एक महाराष्ट्र का हर वो शख्स इसको ठीक नहीं समझ, महाराष्ट्र क्या पूरा भारतवर्ष का कोई भी शख्स इसका सपोर्ट, इसका तायीद नहीं करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ पर। राइट, लेट मी गो टू अशोक यादव साहब। अशोक यादव साहब, आप ये बताइए कि भाषा के साथ अभी एक फुटेज आई थी एयरक्राफ्ट के अंदर, एयर इंडिया की फ्लाइट में कोई बैठा था, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर था, उसके सामने कोई शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा, महिला थी कोई, उन्होंने कहा कि अगर तुम बम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो तो मराठी में बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोलोगे तो मैं दिखाती हूं तुमको क्या होगा। ऐसा एयरक्राफ्ट के अंदर बोला उसको। उस भाई साहब ने खड़े होकर एयर होस्टेस को बुलाया कि भैया ये मुझे धमकी दे रही हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। सर ये क्या चल रहा है, आप बताइए अशोक यादव साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये मतलब हिंदुस्तान है या क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अशोक यादव जी बताएं। भाषा के नाम पे पीटा जा रहा है और वो बच्चा जाकर के आत्महत्या कर रहा है, और फिर उसके बाद वो एमएनएस वाले जस्टिफाई कर रहे हैं, कहता है इसमें हमारा तो कुछ लेना देना है ही नहीं, जिसके खिलाफ एक्शन लेना है लो। आप बताइए सर अशोक यादव जी। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि इस देश की सियासत नफरत के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दी है, और लोगों को ये लगता है कि नफरत फैला करके ही मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। नफरत की यूएसपी बहुत ज्यादा है, लोगों को लगता है, लेकिन समस्या है कि नफरत पैदा कहाँ से हो रही है, नफरत की जड़ कहाँ पे है, और उस नफरत की जड़ को अगर लगातार मजबूती मिल रही है कहीं से, तो ये समस्या तो आए दिन होती रहेगी। यूपी में भी ऐसे होता रहा। अभी आपको पता होगा इखलाक अहमद उत्तर प्रदेश का ही आगरा का रहने वाला था जी, उसको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। योगी सरकार ने जो मारने वाले थे उनका मुकदमा वापस करने की अर्जी दे दिया कोर्ट में। करेक्ट, पता होगा आपको जी, मालूम है कि इनका इसके ऊपर से मुकदमा हटाया जाए। तो चूंकि इस तरह की चीजों को अगर पॉलिटिकली इसका माइलेज लेने की कोशिश अगर कुछ राजनीतिक दल करते हैं, तो इसी तरह की चीजों से ऐसे नफरती विचारधारा को बल मिलता है। आपको याद होगा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, बुलंदशहर में हिंसा हुई थी, और इसी हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जो कि अपनी ड्यूटी के लिए गए थे हिंसा रोकने के लिए, उनको दंगाइयों ने मार दिया, और जब दंगाई छूट करके बाहर आए तो उनका माल्यार्पण किया गया। अब आप बताइए, इस तरह के हिंसा के पुजारियों का अगर माल्यार्पण किया जाएगा भाजपा के द्वारा, इस तरह की हिंसा को या इस तरह की नफरत को बढ़ाने वाले लोगों का महिमा मंडन किया जाएगा, तो जो महिला है या जो लोग इस तरह की भाषा बोले या जो लोग उसको मारे या जो लोग उसको अपमानित किए, ह्यूमिलिएट किए, तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको भी खोज रहे हो कि हो सकता है हमारा भी कुछ भला हो जाए इस तरह की बात करने में। ये सब चीजें, इसको स्टेट को कम से कम इस तरह की चीजों को करने वाले लोगों के खिलाफ एक एक्शन लेकर के समाज में एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसे लोगों की समाज में, राजनीति में, किसी दल में कोई जगह नहीं हो सकती जो ऐसी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। अशोक लेकिन यादव जी, दुर्भाग्य है इस देश का। यादव जी, अशोक यादव जी, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि सिक्योरिटी सेफ्टी इज अपर मोस्ट, सबसे परम आइडियोलॉजी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को कायम रखे। बोले जेल या यमराज के पास भेज दूंगा, जो भी वायलेशन करता है उनको या जेल में भेज दूंगा या यमराज के। डू यू बिलीव वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो जेल या यमराज? अशोक यादव जी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे उसको एक क्वेश्चन के कई आंसर होते थे, तो योगी जी ने 2 ही बताया, तीसरा नहीं बताया। उन्होंने बताया जेल, यमराज, और तीसरा जो नहीं बताया वही उत्तर है, भाजपा जी। तो अब वो देखिए, आप जो भी भाजपा के जो भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो योगी जी के कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो मान लेते हैं कि आई एम सेफ। ब्रिजेश सिंह देख लीजिए बनारस में क्या साम्राज्य चल रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरे धर्म और दूसरे जाति के ऐसे माफिया जो सरकार को सूट नहीं करते हैं, वो उनके लिए सामत है। आप देख लीजिए ना, कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, हथियारों का। क्या उन हथियारों का लाइसेंस किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है? लेकिन सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा।
सरकार लेकिन उनकी- राजा भैया तो आपके मुख्यमंत्री दोस्त हैं उनका- ना सर। तो इस तरह की चीजों को जी रघुराज प्रताप सिंह जी तो नेताजी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सहयोगी थे। ये तो अखिलेश जी ने जब बहन जी के साथ एक अलायंस कर ली तो रघुराज प्रताप सिंह जी गुस्सा हो गए। ऐसी क्या बात है सर, पहले तो आप ही के साथ थे ना अशोक यादव जी, मंत्री भी बिल्कुल, आपने थे सही कहा। आपके, लेकिन आपके राज्य में मंत्री भी थे। और तो और छोड़िए, अखिलेश जी की जब सरकार आई है उनको जेल मंत्री बनाया गया। बोलिए सर अशोक यादव जी। बिल्कुल आपने सही आपने बिल्कुल सही सवाल किया और मैं ऐसे सवालों से भागता नहीं हूँ राजीव जी। जी हमारे सरकार में और हमारे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनके बहुत सारे ऐसे कदम हुए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वो माफिया चाहे सरकार में सरकार का सपोर्टर हो चाहे सरकार का विरोधी हो, अखिलेश यादव जी ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया। डीपी यादव का केस आपको याद होगा। याद तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने सरकार से ऐसे लोगों को बाहर करने का या निष्प्रभावी करने का काम किया जी। लेकिन राजा भैया तो कहते हैं कि वो खुद गए बाहर क्योंकि अखिलेश जी ने समझौता कर लिया था मायावती जी के साथ। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं पहले डॉक्टर अविरल मलिक के पास जाता हूं। अविरल मलिक साहब ये बता दीजिए कि ये घटना 3 दिन पहले की है और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा कर रही है शिवाजी पार्क में। सर ये क्या है सर यू कैन इजीली अरेस्ट दीज पीपल। चलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे हैं, कौन है क्या है मालूम नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी के थे भी या नहीं थे किसी को मालूम नहीं है, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के थे या शिवसेना के थे या किसी और पार्टी के थे, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ तो एक्शन हो सकता है, उनकी तो शनाख्त हो गई है। सबको मालूम है कि इस डब्बे से कौन निकला। हर स्टेशन पर मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क पे बहुत सीसीटीवी कैमरास हैं सर, उनकी शनाख्त भी हो गई है। तो उनको अरेस्ट कर लीजिए, उनके खिलाफ तो एक्शन कीजिए मलिक साहब। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट किया जाना चाहिए। किसी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। और जो इस प्रकार के लोग हैं जो मानवता विरुद्ध हैं और समाज विरुद्ध हैं, देश विरुद्ध हैं और जिस तरीके से मारपीट करने का काम करते हैं धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जात के आधार पे, पंथ के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और विधि के आधार पे और कानून के आधार पे जो भी एक्शन पॉसिबल होगा निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध लिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलर विषय की बात कर ली जाए तो निश्चित ही ये सीरियस मामला है और ये कंफर्म है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और शिनाख्त हो गई है। तो शिनाख्त होने के बाद 100% इन लोगों की अरेस्टिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर मलिक, अविरल मलिक जी, अखिलेश यादव जी का कहना है देयर इज एन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन नॉट ओनली उत्तर प्रदेश फॉर द एंटायर इंडिया, और खास करके उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी सिचुएशन जैसे स्थिति है। सिंगल आइडियोलॉजी इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द पीपल। अखिलेश यादव जी का कहना है पूरे देश में वातावरण चल रहा है सिंगल आइडियोलॉजी इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द पीपल और डेलिबरेट इम्पोज। आपको सहना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्या ये सही है? Are we witnessing an emergency like situation as अखिलेश यादव जी कह रहे? जी नहीं, देखिए अखिलेश जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। मैं समझता हूं नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो स्टैंड लिया था उस स्टैंड को इन्हें एक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिस प्रकार से इमरजेंसी के खिलाफ लड़े 1975-77 के मध्य में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा जो इस देश पे आपातकाल लगाने का काम किया गया था और जिस तरीके से इमरजेंसी इंपोज करके लोकतंत्र की निर्मम हत्या करने का, लोकतंत्र को कुचलने का काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो सर्वविदित है, सबके मध्य में रहा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं अखिलेश जी को उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। स्वर्गीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो स्टैंड लिया था और किस तरीके से वो कांग्रेस विरोधी रहे। तो अगर इमरजेंसी की बात कर ली जाए तो इमरजेंसी तो सबने देखी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार जी भी जिस तरीके से इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, लोकतंत्र की जीत के लिए लड़े, वो लोहियाइस्ट हैं, समाजवादी हैं और उसके साथ साथ सेकुलर भी हैं। और आज सेकुलर सरकार बिहार प्रदेश के भीतर बनी है। जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वली ट्रीट करने वाली सरकार है। और मैं समझता हूं नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से 5 साल पूरे करेगी, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। वो तो करेगी, आपके पास मेजॉरिटी है, वो तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अविरल मलिक साहब, जो अभी अशोक यादव जी ने बोला
कि जहां तक कि आपका सवाल है, ये सवाल पहले भी आ चुका है कि जिस कास्ट को आदरणीय सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं, ठाकुर हैं, ठाकुरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता यूपी में सर, बाकी सबके खिलाफ हो जाता है। ऐसा क्यों है सर? अभी उन्होंने ब्रिजेश सिंह का नाम लिया, उन्होंने फिर ये भी कहा कि अखलाक जो है जिसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग को उसको मार दिया गया, उसको इस शक की बिना पर के वो उसके घर में कोई बीफ था, उसको मार दिया गया। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को जिन्होंने मारा बुलंदशहर में, वो जैसे ही जेल के बाहर आए उनका मालार्पण किया गया। और इसी तरीके से गुजरात का केस तो आपको याद ही है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिन 11 लोगों ने गैंग रेप किया था उनका मालार्पण करके उनका स्वागत किया गया, फिर उसके बाद उनकी फरलो कैंसिल की गई, पैरोल कैंसिल की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सर ये क्या हो रहा है, आप बताइए ना सर, ये क्या, ये सही मैसेज भेजता है क्या? आप बोलिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, अगर इस देश की बात कर ली जाए, बिल्कुल देखिए, इस देश की अगर बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, अन्य राज्यों की बात कर ली जाए, तो मैं समझता हूं इस देश में कानून का राज स्थापित है, जुडिशरी है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और निश्चित रूप से न्यायपालिका फैसला लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस के बस की क्या है? अब पुलिस क्या कर सकती है, किस स्थिति की अगर बात कर जाए, पुलिस के हाथ में क्या होता है? पुलिस तो मतलब एक तरीके से 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करती है, पुलिस के पास तो इतना राइट है। और अंतोगत्वा कोर्ट को डिसीजन लेना होता है, कोर्ट तय करती है कौन जेल जाएगा, कौन बेल पे बाहर आएगा, वो जज तय करता है, जुडिशरी तय करती है कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा। वो किसी प्रकार से पुलिस के हाथ में नहीं होता कि किसी व्यक्ति को उठा करके जेल में रख दिया जाए। और अगर बात कर जाए जो 10, 20, 50 नामों की बात कर जाए, तो मैं समझता हूं इस देश में न्यायपालिका है और एक्शन होता है। और बिहार की भी अगर बात की जाए, अनंत सिंह पे एक्शन हुआ, अनंत सिंह के ऊपर एक्शन हुआ, वो सबने देखा, और किसी प्रकार से किसी रूप में किसी को नहीं बख्शा जाता। अब अंतोगत्वा तो कोर्ट, सर अगर प्रोसिक्यूशन चार्जशीट वापस ले ले तो सर जो अशोक यादव जी ने कहा उसका तो जवाब दे दो। अरे उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ने केस प्रिपेयर किया था उन्होंने वापस ले लिया है अखलाक वाले केस में, फिर कोर्ट क्या करेगा? अगर कोर्ट के सामने जो चार्जेस हैं, प्रोसिक्यूशन ये बोलता है कि भाई हम इसको वापस ले रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस? अखिल मलिक साहब, इस केस के बारे में मालूम है ना आपको? अखिल अखलाक, यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, आप खुद वकील हैं, प्रदीप जी वकील हैं, आप मुझे बताइए कोर्ट क्या करेगा अगर पूरा केस ही आप वापस ले रहे हैं? तो स्टेट इज विथड्रॉइंग द केस, देन व्हाट यू डू, व्हाट कैन द कोर्ट डू? इन एनी इवेंट, आई वोंट एम्बैरेस यू एनीमोर, बट लेट मी गो टू मोहसिन हैदर साहब। मोहसिन हैदर साहब, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अविरल मलिक साहब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एक्शन का, तो निश्चित रूप से एक्शन होता है, और उसके साथ साथ जहां तक विड्रॉ करने का आपने सवाल पूछा, और इस तरीके से अगर सवाल है तो निश्चित रूप से वो जांच के आधार पर फैसला होता है, जांच के आधार पर तय होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के आधार पर कोई चीज तय नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एक रिलीजन के आधार पर काम हो, केवल हिंदू के आधार पर काम हो। ऐसा ना होता है, ना होना चाहिए और ना होगा। ये देश संविधान के आधार पर सब जगह वही हो रहा है। महाराष्ट्र में भी सबका विकास हो, महाराष्ट्र में भी केसेस विड्रॉ हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी केसेस विड्रॉ हो रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े स्कैम से विड्रॉ हो रहे हैं केसेस। मोहसिन हैदर साहब, आप ये बताएं कि जब मोदी जी जब आए यहाँ पे, सब लोग बड़े उत्साहित थे कि मोदी जी आएंगे, जितने स्कैमस्टर हैं सब जेल में जाएंगे, ये होगा वो होगा वो होगा। अरे यार, जितने लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खुद आरोप लगाती थी कि तुम्हारे खिलाफ स्कैम है, वो आज बीजेपी में है। सर ये क्या है? मोहसिन हैदर साहब, इस पे कुछ रोशनी तो डालिए। राजू जी, ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, 2 दिन पहले इल्जाम लगाया था कि 77,000 कोटी का भ्रष्टाचार हुआ। आज वो महाराष्ट्र में जो है डिप्टी सीएम है जी। इसी तरह महाराष्ट्र में जिन पर इल्जाम लगाए थे वो तमाम लोग जो है, कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, कोई अलग अलग मिनिस्टर है, तो कल तक जो इल्जाम लगाते रहे वो आज मिनिस्ट्री बन गए। कुछ का कहना ये था कि अभी सुकून की नींद सोता हूँ क्योंकि मैं इस पाले में आ गया हूँ। तो ये आवाम देखती है तो किताबी बातें अलग है, लेकिन हकीकत लोग देखते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आज आपको पता है कि आप एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हो, लेकिन माहौल देखिए क्या एक खौफनाक माहौल है लोगों में। हर वो शख्स सोचता है कि मैं कुछ बोलूं और मैं फंस न जाऊं, कैसे कैसे बच के निकलूं। इस तरह का एक माहौल सियासत में भी है, आम जिंदगी में भी है। एक क्लियर कट है कि लोग वॉशिंग मशीन है ये, यहाँ पर किसी तरह का जो है गलत काम कीजिए, लेकिन इस पाले में अगर आ जाते हैं तो आप पूरी तरह डुलता ही नहीं। आपको डिप्टी सीएम के लेवल तक आप जा सकते हो, सीएम तक बन सकते हो आप,
ये एक तरह का माहौल पूरा मुल्क में देख लिया। अब आप कितना भी उसमें कैसे भी बोलिए, 2014 में जो बातें कही गई थी, एक साफ सुथरा जो है सत्ता रहेगी और लोग एकदम साफ सुथरा रहेगा, किसी पर अन्याय नहीं होगा, एक बातें थी जो अभी तक वो खुल गया है पूरी तरह। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया, हर सूबे का, हर स्टेट की बात है ये। मोहसिन हैदर साहब ये बताएं, ऐसे बहुत हर स्टेट चलिए ये बात तो चल रही है सर। अभी अवाम इस बात को जानती है। मोहसिन हैदर साहब आप ये बताएं, कांग्रेस ने, सुनने में आया, जैसे प्रदीप जी ने अभी भी एक बार पूछा, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाई, कांग्रेस ने यह तय किया है कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो महाराष्ट्र में है, मैं उम्मीद करता हो जाएंगे, क्योंकि उसका फाइनल डिसीजन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट लेगा 25 तारीख को, क्योंकि जो रिजर्वेशन है 50% के ऊपर चला गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये आप, बहुत लोगों का ये मानना है, बहुत लोगों का मानना है, सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का मानना है कि कांग्रेस को नेशन वाइड, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अकेले लड़ना चाहिए। आप जब भी अलायंस में जाते हैं आपका घाटा होता है और आपके अलायंस पार्टनर का भी घाटा हो जाता है। आप बताएं सर, बोलिए। देखिए बिल्कुल हर सियासी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे छोटी छोटी पार्टी भी हो, वो यही सोचता है कि मैं अकेला अपने दम पर पूरे मुल्क पर पार्टी चला दूं। भारतवर्ष में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर इस मुल्क के सिक्योरिटी की बात हो, इस मुल्क के एकजुटता की बात हो, वहां पर हम जहन के, हम सोच के लोगों को एक साथ आना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी की सोच है। जहां पर एक तरफ फिरका परस्त पार्टी हो, एक पर फिरका परस्ताना पोलराइजेशन की बात करता हो, जहां इस तरह के जो है एक बहुत बड़ा एक क्रिएट किया जाता हो कि तशार फैलाया जाता, तो ऐसे में सम विचार के जो लोग हैं उनको साथ में आने से मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह के जो है बातें है। अल्टीमेट चीज जो है, पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन अल्टीमेट चीज ये है कि देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश एक साथ रहनी चाहिए, यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर तमाम लोग रहनी चाहिए, सिर्फ किताबों में बात। मोहसिन हैदर साहब, बात है देयर इज रिबेलियन इस सोच के लिए, इज देयर अ रिबेलियन विद इन द कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर क्या रिबेलियन है? राहुल गांधी जी का एक प्रकार से बिहार में एक हार बोलते हैं तो अलग अलग तरह से आवाज निकलने लगे, इंडिया अलायंस शुड बी लेड बाय अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस शुड बी लेड बाय ममता बनर्जी। तो एक पुकार पूरे इंडिया अलायंस पार्टनर्स की तरफ से आया है कि वी नीड टू रिप्लेस राहुल गांधी जी विद आइदर अखिलेश यादव जी, who is the second largest MPs who is in the parliament after Rahul Gandhi ji and Mamata Banerjee. So do you think a rebellion is brewing within the Congress against Rahul Gandhi ji? मोहसिन जी, इस पे तो मुझे लगता नहीं कि इस पे पार्टी में कोई रिबेलियन नहीं है। रही बात, अगर कोई इस तरह की चर्चा होती है तो कोई बात नहीं है, तो डेमोक्रेसी है, और एक साथ अगर कोई इस तरह का मामला निकलता तो इस पे बातें हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा गलत बात या डिक्टेटरशिप हम लोग नहीं चलाते हैं, इस पे चर्चा हो सकती है, कोई किसी भी एंगल से बात हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट पे बात हो सकती है। ये कोई गलत बात नहीं कि लीड कौन करनी चाहिए, तो ये कोई सवाल ही नहीं लीड कौन करनी चाहिए। लेकिन बेहतरी के लिए, इस मुल्क के बेहतरी के लिए, एकजुटता के लिए, इस मुल्क के सिक्योरिटी के लिए विरोधी पक्ष की तरफ से कोई भी जो है वो लीड करे, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इस पे चर्चा हो सकती है, पार्टी भी करेगी। राहुल जी ने शशि थरूर, राहुल जी ने भी ये नहीं कहा मैं ही लीड करूंगा, कभी इसने इस तरह की बात नहीं की। बट विद इन द पार्टी आप शशि थरूर जी जैसे बोल रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं कि वी शुड थिंक बियॉन्ड द फैमिली, फैमिली से आगे सोचकर देश हित में बात करना पड़ेगा। और जब भी देश हित की बात करते हैं तो आप एक फतवा लेके आते हैं विद इन द कांग्रेस पार्टी कि आप ये नहीं बोल सकते, देश हित में मोदी साहब के तारीफ नहीं कर सकते, देश हित में बोल नहीं सकते, आप राहुल जी के बाद खिलाफ बोल। हाउ डू यू सी दैट? शशि थरूर जी वगैरह का स्टेटमेंट जिस प्रकार से आ रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका अपना सिस्टम होता है, कोई भी मुद्दा मुझे अपनी बात रखनी हो, पार्टी के फोरम होते हैं, पार्टी के जो है मीटिंगें होती है, वहां पर अपनी बात रख सकता हूँ। लेकिन मैं एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ और दूसरे सियासी पार्टी के नेताओं की मैं तारीफ करूँ तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। तो ये किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी का अपना अपना जो है एक प्लेटफॉर्म होता है, मीटिंगें होती है, वहां पर चर्चा हो सकती है। शशि थरूर जी जो है ये कोई स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी का नहीं, उनका अपनी निजी राय है, लेकिन सियासी पार्टी में निजी राय भी अगर रखना हो तो पार्टी की मीटिंगों में रखनी चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं बताता, किसी भी पार्टी की, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन हमारा यही कहना है कि जहां पर इस तरह के, देखिए कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, आप यहाँ पर कुछ भी चर्चा कर सकते हो। अगर शशि थरूर की जगह पर अगर समझ लीजिए और किसी और पार्टी जो है, जो और खास करके और पार्टी ने, मैं तो कहूंगा कि जो पार्टी सत्ता में है,
अगर कोई इस तरह का अगर राहुल जी की अगर तारीफ करने वाला बयान अगर दे तो मुझे बताइए आज उसकी जगह कहां पर होगी। कांग्रेस पे यही आपको पता चले डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन तो उसके मोहसिन बाद हैदर भी साहब, हर पार्टी मोहसिन हैदर साहब, के जो कार्यकर्ता है, लीडर है, उनको अपनी पार्टी के भीतर ये बात रखनी चाहिए और रख सकता है। मोहसिन हैदर साहब, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि अब कांग्रेस एक बार फिर टूटने के कगार पर है। कई बार कांग्रेस में स्प्लिट हो चुके हैं और हो चुके हैं, उसमें तो कोई है ही नहीं, इतिहास गवाह है। 1885 से जब से कांग्रेस बनी है, न जाने कितनी बार टूटी है, अलग अलग खेमे बने हैं कांग्रेस के। तो क्या इस बात में कोई सच है कि कांग्रेस एक बार फिर स्प्लिट के कगार पर है, टूटने के कगार पर है? नहीं, मुझे ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आज जो है एक साथ ही है पार्टी, कोई स्प्लिट की बात नहीं है। रही बिहार इलेक्शन का मामला है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम सोचने पे मजबूर है कि हुआ क्या, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक पूरे मुल्क की आवाम की एक प्रश्न है, एक सवाल है कि जो इलेक्शन के दिन क्या ये सही है? आप मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन से 2-4 दिन पहले ऐलान होता है और 10-10 हजार रुपए एक शख्स को दिया जाता है, कोई पैसा पेमेंट देने की बात आती हो, क्या ये रिश्वत नहीं है? लीगल रिश्वत नहीं है? इलेक्शन से पहले तो आप इतने साल सत्ता में थे, दे देते आप पैसे, गरीबों तक पैसा इलेक्शन आते ही आप डिक्लेयर करते हो और 10-10 हजार रुपए एक फैमिली, एक पर्सन को देने की बात करते हो। इलेक्शन का जो है नोटिफिकेशन रोक दिया जाता है, ऐलान रोक दी जाती है, ये पेमेंट दी जाती है। तो ये कहां तक ठीक है? ये हिंदुस्तान के हर आवाम को सोचनी चाहिए, एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को नहीं, मुल्क के हर आवाम को सोचना चाहिए कि सही है ये रिश्वत किसके पैसे से दी जाती है? ये क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है? क्या इस मुल्क की आवाम का खून पसीने का पैसा है? ये सोचने पर मजबूर है आवाम, सोचनी चाहिए, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। राइट। सो अशोक यादव जी, ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर जब भी कांग्रेस किसी के साथ अलायंस में आती है तो उसकी मतलब जो उसका अलायंस पार्टनर है वो बेचारा पॉलिटिकली तहस-नहस हो जाता है। आप उद्धव ठाकरे जी को देख लीजिए महाराष्ट्र में, आप तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए बिहार में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही हाल अखिलेश यादव जी का भी हो जाए उत्तर प्रदेश में? क्या आप कांग्रेस के साथ जो अलायंस है उसके ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं सर? देखिए राजीव जी, आपने दो तीन एग्जांपल्स दिए यहाँ पर, 2 एग्जांपल दिए और एक एग्जांपल आप भूल गए, 4 जून 2024 वाला, जो हमारे इंडिया गठबंधन के ही नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के यूपी में 62 से 33 पर ला दिए और 37 सीटें हम जीते, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी। करेक्ट। तो ये भी एक एग्जाम्पल था जी, दुरुस्त बात। ठीक है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा, कि जो इस तरह का जो चुनाव जीतने का जो सिस्टम भाजपा डेवलप कर रही है, ये कहीं न कहीं थ्रेट्स है हमारे डेमोक्रेसी को लेकर के। बाबा साहब ने हमारे जितने भी जनता थे सबके वोटों की कीमत बराबर आंकी थी, लेकिन ये सरकार वोटरों को भी खरीदने का काम कर रही है। आप ये बताइए, जो लीगलाइज्ड ब्राइब दी जा रही है, लीगलाइज्ड ब्राइब, वो क्या ये ठीक है? और अभी तेलंगाना में रायतू बंधु योजना थी राजीव जी, आप देखिएगा, उसको सर्च करिएगा, ये 2018 से स्कीम चल रही थी और चुनाव आयोग ने इसको बंद कर दिया। केसीआर की सरकार उसको लागू करना चाहती थी, उसमें जो भी किसानों को खाते में पैसे जाते थे, इस योजना के चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। नहीं, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उड़ीसा में नवीन पटनायक भी इसी तरह कुछ स्कीम उनकी पहले से चल रही थी, चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। और लेकिन यही चुनाव आयोग बिहार में कहता नहीं आप बांट सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां भाजपा की सरकार बनानी है। यही चुनाव आयोग महाराष्ट्र में कहता है आप बांटिए, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार बनानी है। यही चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में कहता है खुलेआम बांटिए, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार बनानी। तो इस तरह का कल्चर अगर किसी देश की व्यवस्था में, लोकतंत्र में घुस जाए तो फिर उसका तो मालिक भगवान है। फिर क्या डेमोक्रेसी को लेकर क्यों मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? जब व्हाइट हाउस में गए थे, सबरीना सिद्दीकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने पूछ दिया डेमोक्रेसी को लेकर के, और कई सवाल, मोदी जी ने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी रन्स इन आवर ब्लड। तो डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तमाम ऐसा डायलॉग बाजी करने की जरूरत क्या है? अभी तो मैं एक विदेशी अखबार ब्लूमबर्ग, अभी चूंकि हम लोग विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं राजीव जी, विदेश के अखबारों में भी इस पर सवाल उठाए गए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मैं लेके बैठा हूं, उसमें एकदम क्लियर कट लिखा है, पीएम मोदी एंड एलआई
PM Modi and key allies have won landscape victory in Bihar, India's poorest state, after stuffing money into the bank accounts of millions of women under employment program. ये ब्लूमबर्ग ने छापा था। तो आप इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की। इसको कभी कोई सोचा भी नहीं था कि डेमोक्रेसी को पैसे से भी खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। इस स्तर तक अगर कोई पार्टी उतर जाए और चुनाव आयोग उसमें सहयोग करे तो ये हमारे देश की मतलब पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए काफी है। तो कहने का मतलब ये हुआ अशोक यादव जी कि जैसे अगले साल कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, अब सीधा रमैया जी की सरकार है, पता नहीं हो सकता है DK शिव कुमार जी आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, जो भी है कांग्रेस की सरकार है। अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बिल्कुल ऐसे ही बिहार की बिना पर मुख्यमंत्री क्या है विकास योजना शुरू कर दे और वहां पे लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में 15-15 हजार रुपए बांट दे। अब उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या करेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है जब यही चीज कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में करने की कोशिश की थी तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था कि भाई साहब आप नहीं कर सकते जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो ये क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। अब मुझे मालूम नहीं कि आप असल में सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन आप इससे लड़ेंगे कैसे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विकास योजना अनाउंस कर देंगे, 20-20 हजार रुपए हर एक खाते में डाल देंगे, फिर आप क्या करेंगे सर? अशोक यादव जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिहार में भी इसी तरह का ड्यूरिंग इलेक्शन, आपको सब पता है आप लोगों को, ड्यूरिंग इलेक्शन कल वोटिंग आज पैसे आ रहे हैं, ये तो इनके पास जैसे खून लग गया था ना, शेर के मुंह में खून लग गया, तो ये खून लग गया इनके मुंह में। इनको पता है कि यही एक हमारा ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से हम सारे मुद्दों के ऊपर पानी फेर सकते हैं। समाजवादी पार्टी, हम लोग लर्निंग में बहुत विश्वास रखते हैं राजीव जी, हम लोग सीखते बहुत है परिस्थितियों से, हम लोग डार्विनिज्म को पढ़ते हैं कि एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलता की परिस्थितियों से तालमेल बैठाना, ये हम लोग का पूरा इसी पे रिसर्च चलता है। हम लोग अपने मतदाताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये मैसेज दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं, उनकी बातों को लेकर के हम लोग उनकी बातों को उनके बीच में जाकर के अपनी बातें उनके यहाँ पहुंचा रहे हैं कि ये 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में आपके अंतरात्मा को खरीदा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, आपने जो बाबा साहब ने जो वोटों की ताकत दी थी, ये बाबा साहब का अपमान है। ये आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आपको अपाहिज बनाने का प्रोग्राम भाजपा कर रही है। एक बार खाते में पैसा डालेगी, पूरा 5 साल के लिए आपके बच्चों का नौकरी, कुछ नहीं होगा। अशोक यादव जी सब चौपट कर देगी। अशोक यादव जी, केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि कुछ नहीं होगा, आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं उसका कुछ नतीजा निकलेगा, इसलिए नहीं है बिकॉज योगी आदित्यनाथ जी को आप टॉपल नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य जी बोले फैमिली पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया मोदी जी ने बिहार में, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में ऑल्सो द फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज पीपल वांट डेवलपमेंट। रंगदारी, जंगल राज, फिरौती, अपहरण, पीपल हैव रिजेक्टेड दैट इन बिहार और यहां पर भी रिजेक्ट होगा, तो ये नहीं चलेगा। अशोक यादव जी, केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को तो पहले पूरा फोकस करना चाहिए कि इस बार सिराथू से वो अपना विधानसभा जीत जाए। पिछली बार तो हार गए थे, तो उनको तो अपना पहले फोकस करना चाहिए, अपनी खुद की इज्जत बचाएं और ताकि स्टूल हट के उनको भी एक लग्जरी शेयर मिल जाए योगी जी के बगल में, इस पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने परिवारवादी पार्टी का अंत कर दिया। आपने मंत्रिमंडल देखा होगा बिहार का, कोई तो ज्यादा दिन हुआ नहीं जी। बिहार में पकड़ुआ विवाह होता है, आपने सुना होगा, पकड़ुआ पकड़ के जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा RLSP के अध्यक्ष हैं, उनके लड़के को जबरदस्ती पकड़ के मंत्री बना दिया गया। न तो सांसद, अरे सॉरी, न तो MLA न तो MLC, कुछ नहीं, पकड़ा गया, चलो बेटा तुम मंत्री बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम अध्यक्ष जी के बेटे हो। तो इस तरह का परिवारवाद का विरोध, और कुशवाहा जी की पत्नी है शायद, परिवारवाद की वजह से मंत्री बने हैं। मैं लेकिन देख रहा परिवारवाद को कंप्लीट करो, यही पर आपका डिस्ट्रक्शन होने वाला है। अशोक यादव जी, परिवारवाद वहां खत्म हो गया, यहां पर भी खत्म होगा। नहीं, अगर देखिए 26 मंत्रियों में अगर 12 मंत्री परिवारवाद की देन है और सरकार कह रही परिवारवाद का अंत हमने कर दिया, तो उनको तो मैं प्रणाम करूंगा कि इतना मतलब
परिवारवाद का उदाहरण भी दे रहे हैं और परिवारवाद को खत्म भी कर रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ा जीवट का व्यक्ति ही ऐसी बात बोल सकता है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। जी जी जी, कहने का मतलब ये हुआ अविरल मलिक साहब, जैसे खुशबा जी का जो एग्जांपल दिया गया, और वो जो जिसको मंत्री बनाया गया वो तो एमएलए भी नहीं है, उसको तो वैसे ही मंत्री बना दिया गया क्योंकि उसका नाम खुशबा है। सर अब आप बताएं अविरल मलिक साहब, और अब मेरे पास तो लिस्ट पड़ी है, मैं पूरी की पूरी लिस्ट अगर आप चाहो तो पढ़ देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़े बड़े नेता थे या नेता हैं, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहुएं, सब बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं। सर अविरल मलिक साहब आपको छोड़ के, एक डॉक्टर अविरल मलिक को छोड़ करके बाकी सब लोग बड़े बड़े ओहदे पे हैं। ये क्या चक्कर है सर, ये बताइए। हम तो चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर अविरल मलिक भी मंत्री बने अभी। अब आप बोलें सर प्लीज, अविरल मलिक साहब। जी नहीं, देखिए मैं एज ए स्पोक्स पर्सन काम कर रहा हूँ, जो पार्टी का दायित्व है उसे निभा रहा हूँ, और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की या एक तरीके से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की, तो मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और जहां तक पर्टिकुलर परिवारवाद की आपने बात की, देखिए परिवारवाद दो टाइप का होता है, इस चीज से सभी लोग सहमत होंगे। मैं केवल बीजेपी का हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, या किसी अन्य राजनीतिक दल का हूं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं। देखिए मैं पर्टिकुलर अगर बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल कॉमन है। एक होता है टिकटार्थी, टिकट लेने वाला किसी भी राजनीतिक दल में होता है, वो बड़ा कॉमन सी चीज है। और दूसरा व्यक्ति होता है जो थोप दिया जाता है, और जो शीर्ष नेतृत्व अथवा राष्ट्रीय नेतृत्व तो वर्णन कर सकते हैं कि किन किन लोगों में राष्ट्रीय नेतृत्व अथवा शीर्ष नेतृत्व किस आधार पर तय होता है कि भाई ये किस परिवार से, इस आधार पर शीर्ष नेतृत्व तय हो जाता है। और दूसरा चीज है टिकटार्थी बनना। अब टिकट मांगना, किसी नेता के बेटे हो, किसी नेता के रिश्तेदार हो, तो मैं समझता हूं वो चीज गलत नहीं है। वो आपका अधिकार है कि आप टिकट मांगे, आप चुनाव लड़ें, चुनाव में आगे बढ़ें, जीतें, जनता आपको जिताती है। उसके बाद सदन में जाने के पश्चात आप विधायक बनने के बाद मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, क्या बने, वो निश्चित रूप से सब लोगों का अधिकार है, इसमें किसी रूप में समस्या नहीं है। लेकिन परिवारवाद अगर है तो वो चीज परिवारवाद है कि भाई ये आपका पर्टिकुलर सरनेम है इसलिए आपने पूरी पार्टी हाईजैक कर ली, पूरी पार्टी आपके हाथ में है, आप टिकटार्थी ना बन के आप टिकट देने वाले बन गए अचानक से। तो मैं समझता हूँ ये परिवारवाद है, और ये परिवारवाद की श्रेणी में आता है, और सब लोग इस चीज को जेन्युइन समझें। डॉक्टर अविरल मलिक जी, अखिलेश यादव जी का कहना कि योगी आदित्यनाथ सरकार डिक्टेटोरियल टोटलिटेरियन टेंडेंसी से चल रहा है, आजम खान जी के लड़के को फिर जेल में, अगेन एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, एक टोक तंत्र है कि आप ऑपोजिशन के जितने लोग हो उसको उठोगे जेल में डाल दो। तो ये यही क्या है कि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, यही कि टोटल डिक्टेटोरियल टेंडेंसी से क्या जरूरत था। ही सेड इट इज एक्सट्रीम इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। अखिलेश यादव जी ने कहा एक्सट्रीम इनजस्टिस और ऑपरेशन। व्हाट हैपेंड टू आजम खान सन? डॉक्टर मलिक। नहीं, देखिए जहां तक विषय अरविंद केजरीवाल जी का, हेमंत सोरेन जी का, आजम खान साहब का या अब्दुल्ला आजम जी का, तो मैं समझता हूं देखिए बिल्कुल स्पष्ट चीज है। ईडी सीबीआई की बात हो या फिर एक तरीके से कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट का विषय हो, हाई कोर्ट का विषय हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का विषय हो, तो ये कोर्ट के हाथ में होता है किसको बाहर निकालना है, किसको बेल देना है, किसको बरी करना है और किसको जेल भेज देना है। ये सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, लोकदल का हो, किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति बिलोंग करता हो, मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निश्चित रूप से अगर किसी रूप में कोई कार्रवाई होती है तो कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा की जाती है। जी मोहसिन हैदर साहब, चलते चलते आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं सर। द पॉइंट इज, हर एक कोई अब ये बोल रहा है कि जहां तक के कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस जो है या तो रीजनल सत्रप्स जो हैं आपके बहुत पावरफुल हैं, उनके बलबूते पे चल रही है, जैसे कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में या फिर हिमाचल में, वरना कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका जो संगठन है, उसको अभी तक ताकतवर नहीं किया। आप सर, आपके सामने समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आप आरजेडी को देख लीजिए, इनका संगठन बिल्कुल बरकरार है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी की तो बात ही छोड़िए सर, भारतीय जनता पार्टी का तो संगठन ऐसा है, अभी तक बीएमसी के चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं सर। आज दूसरी बार बीजेपी के लोग मेरे घर आए हैं बोलने के लिए कि भैया बीएमसी का चुनाव है, आपको बीजेपी को वोट देना है। सर हमारी बिल्डिंग में आए लोग,
दूसरी बार कांग्रेस से तो कोई नहीं आया सर, कांग्रेस से तो असेंबली में भी कोई नहीं आया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कब स्ट्रेंथन करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन को ताकतवर कीजिए ना। आज की तारीख में आप मुंबई से हैं, मैं मानता हूं आप खुल के नहीं बोल सकते हैं, आपको मालूम है एग्जैक्टली क्या हो रहा है एमआरसीसी में, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी में क्या हो रहा है, किसकी बात सुनी जा रही है, किसकी बात नहीं सुनी जा रही है। नसीम खान साहब के जितने भी आसपास लोग थे उन सबको बाहर कर दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, संगठन को आप कब ताकतवर करेंगे? मोहसिन हैदर साहब, संगठन को मतलब कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होता है संगठन को ताकतवर करने का, कोई एक दिन में संगठन कोई ताकतवर नहीं होता। करेक्ट। रही बात, कोई इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मुंबई कांग्रेस है, क्योंकि मैं मुंबई से हूं जी। आपने देखा कि अभी मुंबई कांग्रेस ने खुद ही अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की बात कही और फॉर्म इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के फॉर्म भरने लोग आए। 227 विभाग है मुंबई शहर में और हर विभाग में संगठन है। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पार्टी पूरी तरह से कोई भी अंदरूनी कलह नहीं है, कोई अंदरूनी मामला नहीं है। हर पार्टी में इस तरह की बातें होती है, क्योंकि कांग्रेस एक मास फॉलोअर पार्टी रही है मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां पर इस तरह के जो है हथकंडा आजमाया जाता है इलेक्शन में, उसमें क्या आप उम्मीद कर सकते हो? जहां पैसे की बात आपने कही बिहार का, आपको पता नहीं महाराष्ट्र में क्या हुआ पिछले बार? इलेक्शन से फौरन पहले पैसे जो है बेइंतहा बांटा गया। वो चाहे राजीव बजाज जी ने मांगा हो या मोहसिन हैदर ने हमारे खाते में भेज दिया। और इलेक्शन खत्म होने के बाद आप छाट रहे हो कि मोहसिन हैदर को हमने गलत तरीके से दिया था, इनको गलत तरीके से दिया तो हम बंद कर देते हैं। इलेक्शन आपका हो गया, आपने छाटना शुरू कर दिया, तो जिनको आपने गलत तरीके से पैसा दिया हो वो पैसे का क्या, वो वापस आएगा? मोहसिन हैदर के खाते में गया हो या आप राजीव जी के खाते में गया, वापस चले जाएगा। तो ये इलेक्शन जीतने के इस तरह के हथकंडे अगर आजमाते हो तो मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल के साथ, कोई मजबूती के साथ सामने खड़े हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, क्योंकि बार बार हमने देखा कि इस तरह के तकलीफ परेशानी है, अंदरूनी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो सब इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ मुंबई का अध्यक्ष है, बार बार ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की मीटिंगें होती है और एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, कोई एक दिन खत्म होने वाली बात नहीं है। मोहसिन हैदर जी, बिहार में मोदी जी ने कहा MY मुस्लिम यादव, उस चीज को लोग ने ठुकरा दिया। वो फॉर्मूला वाज वेरी सक्सेसफुल एट वन टाइम फॉर तेजस्वी यादव जी एंड अखिलेश यादव जी। मुस्लिम यादव फॉर्मूला है ही नहीं, मोदी जी ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। मोदी जी ने उनको महिला और यूथ बना दिया, महिला एंड यूथ, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस इन बिहार। मुंबई महाराष्ट्र में भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला MY कह रहे मुस्लिम दलित नहीं होगा, ये होगा महिला यूथ, और महिला यूथ के लिए जो मोदी जी ने बिहार में पूरा टर्न अराउंड किया, यहीं पर होने वाला है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट मोहसिन हैदर जी? प्रदीप जी, मोदी जी कहते रहे कि रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, इसको क्या बोलोगे बिहार में, बताइए मुझे। ये मुस्लिम यादव, ये तमाम चीजें नहीं है। एक तरफ आप बोलते हो रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, फ्री में नहीं बंटनी चाहिए, और अगर आप इतने मजबूत होते बिहार में तो 10-10 हजार रुपये आपको बांटने की जरूरत क्या पड़ती, मुझे बताइए। 10-10 हजार रुपये आपको बांटने की जरूरत क्या पड़ती? यहाँ तो आप बोलते जीतने के बाद हम देंगे, यहाँ इलेक्शन में आप सत्ता में रहते हुए लोगों की मदद करते। आप इतने मजबूत होते तो महाराष्ट्र में 2-2.5 हजार और बिहार में 10 हजार, यानी बिहार में आपको 10 हजार देने की नौबत पड़ गई। फिर आप बोलते हो कि ये MYKP कुछ नहीं, 10 हजार रुपया आपने जो है रिश्वत दिया है, लीगल रिश्वत। बैंक के खाते में जो दिया गया है वो पैसा बीजेपी का नहीं, मेरा भी है, प्रदीप नंबियार का भी है, राजीव जी का भी है, इस देश का हर आदमी का पैसा है। आपने बांट दिया अपने सियासी फवाद के लिए। फिर आप M नहीं हुआ, MY नहीं हुआ, महिला नहीं हुआ, ये तमाम बातें छोड़ दीजिए। ये जो आप इस तरह के काम करोगे लीगल ब्राइब देने का, उसके बाद आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है कि हमने जीत हासिल की है। पैसा जीता है वहां पर, आप पैसा जीता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीती है, पैसा जीता है। तो ये सब जाहिर है, हिंदुस्तान की आवाम जानती है इस बात को। मोहसिन हैदर साहब, आप मुंबई में यानी महाराष्ट्र में, ठीक है साहब, 1,500 रुपए अब कहा गया है कि हमने सिर्फ BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं को दिया है। अब उसकी छंटनी हो रही है कि किसको असल में दिया गया था, किसको नहीं दिया गया था। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिसको गलत दिया गया था उससे रिकवरी कीजिए। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी या कोई कोर्ट क्यों नहीं जाता
कि भैया आपने पैसा कैसे बांट दिया, इसको वापस दीजिए। मोहसिन हैदर साहब, डोंट यू थिंक somebody should go to court and say, hey listen, A is the scheme all right? First how can you distribute money? Number one, you can't distribute money, let's be very clear. आप किसी को ऐसे वजीफा नहीं दे सकते, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये सरकार के किसी भी कानून में नहीं आता है। वो दूसरी बात है, हो सकता है कि कोर्ट में हार जाएं, लेकिन एटलीस्ट इसके खिलाफ कोर्ट तो जाना चाहिए। नंबर दो, आपके ही क्राइटेरिया के मुताबिक ना जाने कितनी करोड़ महिलाओं को या कितनी लाख महिलाओं को आपने गलत पैसे दे दिए, तो वापस लीजिए। आपका दायित्व बनता है सर, यू कांट जस्ट अलाउ दिस मनी टू गो। मोहसिन हैदर साहब, आप कोर्ट जाएंगे क्या? बोलिए। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो आवाम से पैसा नहीं लिया जाए जी, क्योंकि वो जो नेता जो उस आवाम के वोट से जो वोट हासिल किए उनको वरजाना भरने चाहिए। मैंने जो है पैसा बांट कर मैं जीता हूं, और कल मैं कहूंगा कि जिसको मैं पैसा बांटा उससे वसूल करो। मुझसे वसूल करना चाहिए कि उस पैसे के दम पर मैं जीता हूं, मैंने ब्राइब देकर जीता हूं। तो जो नेता जो जीते हैं पैसे बांटकर, उनसे पैसा वसूल करना चाहिए, ताकि ना जो उन लोगों से नहीं जिनको इन्होंने राइट। लेट मी गेट द लास्ट वर्ड इन फ्रॉम अशोक यादव जी। कहा कि जी, पहले आप पैसा जो right, so let me get the I got your point sir. जी, आपका पॉइंट आ गया सर। मोहसिन हैदर साहब, आपने जो कहा कि लोगों से नहीं बल्कि नेताओं से वसूल करना चाहिए, आई एग्री। ना, आई वांट टू आस्क अबाउट मुस्लिम यादव फैक्टर टू अशोक यादव जी बिफोर। बोलिए। अशोक यादव जी, आपने सुना मोदी साहब ने कहा मुस्लिम यादव फैक्टर इज नॉट वर्कड इन बिहार, प्रॉब्ली इट नॉट वर्क इन यूपी। उनका कहना है कि यूपी में भी शायद ये नहीं चलेगा बिकॉज एमवाई को मोदी जी ने चेंज कर दिया। एमवाई को मुस्लिम यादव नहीं है, अब महिला यूथ बना दिया। और जितने मोदी डेवलपमेंट वर्क, महिला सशक्तिकरण, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम्स लाए हैं, उसको देख के लोग वोट करेंगे। बिहार में भी कास्ट फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया और सोशल जस्टिस प्रोवाइड किए, शायद उत्तर प्रदेश में भी यह होगा। एंड ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशल जस्टिस, पीपल विल वोट फॉर सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। अशोक यादव जी, मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिहार में जो उनका अलायंस था वो क्या कास्ट फैक्टर नहीं था? जो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, एलजेपी-आर, ये किस बिहार पे इन पार्टियों से गठबंधन था? कोई फ्रीडम फाइटर तो था नहीं इसमें से। जो भी गठबंधन के लोग थे फ्रीडम फाइटर नहीं थे, एक जातियों का रिप्रेजेंटेशन था। और जातीय रिप्रेजेंटेशन की वजह से मैंने इसके पहले जो बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के को पकड़ के मंत्री बना दिया गया, सिर्फ जातीय वजह से, जाति की वजह से। अपने यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भी जाति की वजह से बने हुए हैं, सरकार में है। तो जाति के अलावा भाजपा के पास कुछ है नहीं। जाति, धार्मिक नफरत, पैसा बांटना, इसके अलावा है क्या? परिवारवाद की बात अभी भाजपा के साथी हमारे कह रहे थे कि ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। मैं मूवी का गाना तो याद है, लेकिन मूवी नहीं मुझे याद है कि हम पियो तो गंगा जल पिए और तुम पियो तो ये शराब है जी। तो इसी तरह का इनका परिवारवाद है कि इनका परिवारवाद दूसरे गंगा जल में आता है, हमारा परिवारवाद शराब में आता है। आपका मुहावरे बहुत हिट है अशोक यादव जी, आपका मुहावरे बहुत हिट है अमंग द व्यूअर्स। बहुत लोगों को अच्छा लगता है आप जिस प्रकार से ये मुहावरों का उपयोग करते हो। तो और बॉलीवुड के गानों का। यस यस। अशोक यादव जी, तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं जो अभी मैंने मोहसिन हैदर साहब से पूछा। अगर आप सब लोग ये मानते हैं, अविरल मलिक साहब सुनने वाली बात है, अगर आप सब लोग ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए, विमेन इमेंसिपेशन के लिए अगर महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारा फोकस है कि जो महिला है वो इंडिपेंडेंट रहे, उसके खाते में अगर पैसे आए तो शी विल बी इंडिपेंडेंट। सीधी बात है। टाइमिंग ऑफ कोर्स इज समथिंग व्हिच कैन बी डिबेटेड। तो सर आप बताएं कि क्या आप इलेक्शन कमीशन को कोर्ट लेकर के जाएंगे कि इस प्रकार की स्कीम्स जो हैं, या उन सरकारों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट लेकर के जाएंगे कि आर दी स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट? क्या संविधान के दायरे में ये स्कीम्स आती हैं कि किसी के भी खाते में आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दें? कौन सी स्कीम के तहत हुआ है ये? विच स्कीम? ये तो ऐसा है, इलेक्शन कमीशन के पहले आपने मध्य प्रदेश में लाडली बहना शुरू कर दी, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, और उत्तर प्रदेश में क्या है, मुख्यमंत्री विकास योजना।
अब आप बताइए सर, अब उत्तर प्रदेश में पता नहीं कौन सी स्कीम आएगी, आपको लगता नहीं है देयर शुड बी some legal degree of prohibition here that hey listen, this is the money of the country, this is the money of the people, you just can't distribute it, ये लोगों का पैसा भाई, आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो इल्जाम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर लगाते थे कि ये लोग रेवड़ियां बांटते हैं, अब आप बोलें सर अशोक यादव जी। नहीं देखिए, जो आपने बात कही ये कई इसके मायने हैं। पहला मायने है ये अगर इसी तरह का कल्चर अगर इनको सफलता मिलती रही तो लोकसभा का चुनाव जब आएगा 2029 में तो क्या करेंगे, 10-12 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपए बांटेंगे और चुपचाप तकिया लेकर सो जाएंगे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसा बांट दिया, देश का पैसा था, मैंने पैसा बांट दिया, चुनाव तो जीतना ही जीतना है। अब बताइए कि इस देश की डेमोक्रेसी का क्या होगा। और रह गई बात, आपने कहा कोर्ट जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन की जरूरत है, जन आंदोलन। और ये जन आंदोलन जनता के बीच से ही आएगा। आप देखिएगा जनता खुद सड़कों पर आएगी जब जनता को ये महसूस होने लगेगा ये एक ट्रैप है। जैसे मछली को चारा फंसाने के लिए दिया जाता है ना, जो मछली मारने वाले, तो उसी तरह का चारा फंसाया जा रहा है। जनता आज नहीं तो कल जैन जी का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में भी इसी तरह का अगर होता रहेगा तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग भी कभी न कभी जागरूक होंगे, और जब जागरूक होंगे पता चलेगा उनके पीछे कुछ बचा ही नहीं, 10,000 चक्कर फंस गए। और तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, तब तक बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट देखिए, आपने कहा ना, एक मैं भूल रहा था, एक विज्ञापन है कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का है कि इसके लिए मैं कुछ भी करेगा, हेलीकॉप्टर पर से कूद जाता, ड्यू शायद माउंटेन ड्यू क्या है, तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर जाएंगे, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। दैट इज पंच लाइन ऑफ द डे। बट 272 लोग, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने लेटर लिखा है कि आप जो वोट चोरी के बारे में बोल रहे हो गलत है, आप इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो अशोक यादव जी, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बहुत सीनियर जजेस, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, राहुल जी, अखिलेश जी, सबका आलोचना किया है। नहीं, वो सबको जो लोगों ने आलोचना किया है उन लोगों से तो हम लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या ये जो डेमोक्रेसी को खरीदा जा रहा है, जज साहिबान और साहब लोग, क्या ये उचित है? अगर वो इस पे अगर उनको लग रहा है कि उचित है तो ठीक है। बाकी तो कांग्रेस के लोग, हमारे साथी लोग रिसर्च करके सबका काला चिट्ठा खोल रहे हैं। आप देखिए ट्विटर पे या फेसबुक पे जो लोग उसमें साइन किए सबका काला चिट्ठा आ रहा है पीछे से कि इनका इतिहास ये रहा, इनका भूगोल ये रहा। तो ऐसे लोगों पे जनता बहुत मतलब नहीं है। ऐसे लोग, ये लोग भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हैं। हो सकता है इनको भी उम्मीद हो कि हमें किसी निगम में बना दिया जाएगा, हमको कोई कुर्सी मिल जाएगी, इस तरह की चीजें हैं इन लोगों का। But I'll tell you very frankly speaking, the BJP has worked out a template. Let me tell you very frankly, जब से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत पूरे सर्वे वर्वे सब उल्टे हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जीत गई। शिवराज सिंह चौहान साहब उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वही चीज अप्लाई की महाराष्ट्र में आज तक कभी किसी को 230 सीटें नहीं आई सर, एनडीए को 230 सीटें आई यहाँ पे। वही चीज हो गई है आपके बिहार में और वही चीज होने वाली है उत्तर प्रदेश में और बाकी स्टेट्स में सर, एक्सेप्ट जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस अपनी ऐसी स्कीम लेकर के आएगी। नाउ whichever state government is in power will remain in power. Let's be very clear, that's what is going to happen. So all I'm saying is all parties including the BJP, सब पार्टीज को बैठ करके अब ये तय करना पड़ेगा कि देश का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, देश में जनतंत्र राज रहेगा या नहीं रहेगा, और आर वोट्स गोइंग टू बी बॉट। लेट्स बी वेरी क्लियर, नाउ दैट इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, including Dr. Aviral Malik, Mohsin Haider Saab, Ashok Yadav Saab. Thank you very much, gentlemen, for joining us. Great pleasure talking to you. But we really have to work together to save democracy, all of us. Thank you, gentlemen. Namaskar. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you. Namaskar. That was nice having Mohsin Haider on the show for the first time in years. I'm seeing him now after a long time. The last time we met him was when he was campaigning for the rights of hawkers. The hawkers. Andheri station ke samne. Bilkul. So that was fantastic. And I'm seeing him now after that, and he hardly seems to have changed. He seems to be exactly the same. Exactly the same. Absolutely. So good man with his heart in the right place. लेकिन प्रदीप जी, लेकिन ये जो है वो सबको तय करना पड़ेगा ना, सारी पार्टीज को यार, कि मतलब डीपीडी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाज फाइन,
मनरेगा के लिए, नरेगा के लिए, बाकी सारी स्कीम्स के लिए। लेकिन चुनाव के पहले आप अगर पैसे ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो आप कभी हारेंगे नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर। सो इज द केस। सो द कांग्रेस विल डू इट इन कर्नाटका, DMK विल डू इट इन तमिलनाडु, TMC विल डू इट इन वेस्ट बंगाल, एवरीबडी विल डू इट ओवर देयर। पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी, सबके खाते में पैसे डाल देगी। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी शुड हैव लर्नड। आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए हर एक के खाते में डालने की बात की थी। भगवंत मान जी के पास पैसे थे नहीं तो उन्होंने ट्रांसफर नहीं किए। उसका खामियाजा भरना पड़ा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस के लोग गए, उन्होंने देखा जी मध्य प्रदेश में हमने पैसे डाल दिए थे, पंजाब में इन्होंने नहीं डाले, देखिए। विच इज वाई वन ऑफ द मेन रीजंस वाई द आम आदमी पार्टी लॉस्ट इन दिल्ली। अब मेरा ये कहना है कि लोगों को तय करना पड़ेगा। देखिए साहब, देश में जब तक इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, प्राइसेस आर सो हाई, प्रदीप जी, पीपल आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट फॉर दैट। हु इज गोइंग टू रिफ्यूज मनी? आर यू मैड? अशोक यादव जी बोल रहे थे लोग खुद आएंगे बाहर, कोई नहीं आएगा। मैं फिर लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं आएगा। और जो भी इलेक्शन होगा उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। गुड मॉर्निंग, उसके बाद आप लड़ते रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने कहा कि दिस इज पब्लिक फंड्स। Yes, this is public money This is for the welfare of the people. This is part of the state budget. and you channelizing it to localized event for public votes, I mean for gaining votes. जी दुरुस्त बात है। That is और something- जैसा आपने पहले कहा कि वो प्रशांत किशोर का क्या एक्यूजेशन है, प्रशांत किशोर का कि 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने यहाँ पे बांट दिए। डाइवर्ट कर दिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये हो क्या रहा है यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? This is not democracy. Then you are buying votes. That's it. That's what you are doing. But there is an obvious side to the story. इस स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी है। वो ये है, अरे पब्लिक के पैसे हैं, पब्लिक को वापस दे दिए, उसमें क्या है? पब्लिक के पैसे हैं ना, पब्लिक के खाते में वापस डाल दिए। किसी और को तो नहीं दिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो नहीं दिए, किसी अडानी अंबानी को तो नहीं दिए, गरीबों को दे रहे। गरीबों को ही दिए ना। तो क्या हो गया? नाउ people have to work out as to what needs to be done. Let's be very clear. And the election commission, let's be very clear, has to be seen to be fair. It should not be just fair, but it has to be seen to be fair. And in some instance, there are lots and lots of question marks with regard to the election commission. कि election commission असल में क्या कर रही है? मतलब ज्ञानेश कुमार साहब जो हैं, माशाल्लाह, he must be a very competent man. No other election commissioner must have felt such pressure sitting in the chair. That's right. Because And the the whole pressure and opposition gunning for you. And pressure showing. A whole opposition gunning for you. रोज के रोज court cases, रोज के रोज कोई Supreme Court जा रहा है, कोई High Court जा रहा है, and you know, charges of corruption, charges of being with the government, and then you have the government that is doing what it wants in arbitrary manner. And election. And you have to defend it. Yes, you have to. And you have to look the other way. Yes. लेकिन प्रदीप जी, अभी तक वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ऑपोजिशन ने वोट चोरी के जो इंस्टेंसेस दिए हैं, दे वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन एक्चुअल वोट चोरी के जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट 0-0 एड्रेस जो है ना हाउसेस का, दैट्स स्टूपिड, दैट्स अटर क्रैप। लेट्स बी वेरी क्लियर। पहले क्या होता था, एज एसवाई कुरैशी साहब सेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि कोई अगर फुटपाथ पे भी सोया है, फुटपाथ के आसपास कोई तो चीज होगी। फुटपाथ के आसपास, चलो गोविंद का घर है, वो तो गोविंद के घर के सामने रहता है जी आदमी, वहां पेड़ के नीचे सोता है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू गो एंड वेरीफाई कि ये फला फला आदमी है, लेट्स से राम कुमार जी 0 एड्रेस पर हैं, तो कोई उसको कंफर्म करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए कहां जाएगा? आप बताइए ना, व्हाट इज 0 एड्रेस? देयर हैज टू बी एन आइडेंटिफाइंग मार्क कि रेलवे स्टेशन के सामने, इसके सामने, यहां पर आपको कुछ करना तो पड़ेगा। Earlier what used to happen was they used to talk about some particular place, उसके सामने ये आदमी सोता है, इस फुटपाथ पर, इस फला दुकान के सामने, so you can go there and verify कि वो आदमी वहां पर है या नहीं। Now my point is, you can't just say 0 address, 000 एड्रेस क्या हुआ प्रदीप जी? But sir, इसमें all parties are responsible. आपके local officer, local political party के जो unit क्या कर रहे हैं? जी, If you're saying it's wrong, why don't you go and rectify it? You go 1-2 महीने पहले आपको at a particular date, all the electoral rolls are given to the local political parties. If something is wrong, go and tell them. Go and. that's when I said about the organization, Pradeep ji.
आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कांग्रेस में असल में क्या हो रहा है। एमआरसीसी के जितने लोग हैं जो हमको जानते हैं, एक सेक्शन को छोड़ करके हर कोई ये बोल रहा है कि वर्षाताई गायकवाड़ किसी से बात नहीं करती, किसी का सुनती नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को अपॉइंट करती हैं। हर कोई ये बोल रहा है। और आज की तारीख में भले आप जो मर्जी कह लीजिए, द फैक्ट रिमेन्स Naseem Khan, who has served the party for such a long time, he's been completely left out. Look at people like Charan Singh Sapra, Naseem Khan, Ajit, our friend Bhai Jagtap. All these people, they've worked really hard for the Congress. Just because there is a new president, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुराने जितने भी लोग थे उन सबको आप बाहर कर दीजिए, ऐसा नहीं होता ना सर। सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सुरेश शेट्टी, विरादे, आप बताइए ना प्रदीप जी। There is one aspect of it, but the other aspect is the first time after years, Congress is fighting the BMC elections on its own. You need to give that credit. She has fought it out. And But didn't they fight the last elections also on their own? I think they fought the last elections also on their own. They had a small little thing with the NCP or something like yes, that. That's it. But this is the first time, and the way she has come out openly and said we are not going to have alliance with Raj Thackeray. AIMM and Raj Thackeray. So they were very clear in their ideology, and it's the first time I think any Congress president. तो मतलब कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि AIMIM has been given a clean doorway to cut the Congress votes. कांग्रेस के वोट्स को काटने के लिए AIMIM को एक डोरवे मिल गया, भाई आ जाओ। कहने का मतलब ये हुआ। तो जो मुस्लिम वोट जो था 20% है अभी मुंबई में, एक्चुअली ज़्यादा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर ये लोग AIMIM से समझौता कर लेते या कुछ कर लेते, दी एंटायर मुस्लिम वोट वुड हैव बीन कंसोलिडेटेड। और उसमें से प्रदीप जी बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट जो है वो तो उद्धव ठाकरे जी को भी जाने वाला है। क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर फैंस ऑफ उद्धव ठाकरे। Muslim votes are confused, अब जाएं किधर? जाएं तो जाएं कहाँ? कांग्रेस को दे, because they are openly against any kind of communalist ideology. Openly, the first time Congress is hit out at that, and then. But I am very happy at the fact that the Congress is doing it alone. In fact, they should go alone all over the country. पूरे देश में आप अकेले जाइए ना, जाइए। क्या है, आप 1885 में बनी हुई पार्टी हैं भाई, 140 साल पुराने आप पार्टी हैं। मतलब आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में। राहुल गांधी जी को देखिए, लर्न फ्रॉम राहुल गांधी। मैं तो ये मान करके चलता हूं, व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम योर ओन लीडर? राहुल गांधी जी ने अभी तक 3 यात्राएं करी हैं, तीनों की तीनों यात्राएं जो हैं वो बहुत जबरदस्त, बहुत सक्सेसफुल रही हैं। स्टेट इलेक्शन में मैं मान करके चलता हूं कि स्टेट इलेक्शन में उनकी इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं रही भाई, लेकिन लोकसभा में तो रही प्रदीप जी। 52 या 54 सीट से 100 के ऊपर आ गई, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज। तो उनसे सीखिए, जब वो लोगों के बीच में जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? मेरा तो ये कहना है, जो एमआरसीसी की जो प्रेसिडेंट है वर्षाताई गायकवाड़ हो गई, जो सबकाल जी जो हैं हमारे जो महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं, अरे भाई लोगों के बीच में जाइए, गांव में जाइए, पंचायत में जाइए, जिले में जाइए, तहसील में जाइए, हर जगह में जाइए। क्यों नहीं जाते हो? लोगों का काम कीजिए एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। मैं तो ये मान करके चलता हूं कि आप परिणामों के बारे में मत सोचिए, जब होगा तब होगा, सीधी बात है। इतने साल आप सत्ता में रहे ना, now why don't you enjoy being in the opposition? That's it, end of story. The day the Congress is able to get that in their head, that hey listen, we are not really concerned with victory at the moment, we are concerned with consolidation. The day Mr. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, our KC Venugopal ji, Jairam Ramesh ji, and all the other people of the Congress party, the day they realize that, that will be the first step towards actual revival of the Congress party. That's what I think. And you can't do without the Gandhis. भले ही शशि थरूर साहब बोलते रहेंगे परिवार से आप अलग हो जाइए, the day the Gandhis withdraw from the Congress, there will be no Congress left. मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, कोई 10-20 और टुकड़ों में चली जाएगी कांग्रेस। Today the only glue which is holding the Congress together is this man here. ये राहुल गांधी जो है ना, इसकी वजह से आज की तारीख में कांग्रेस इकट्ठी है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया उस दिन गुड मॉर्निंग है कांग्रेस की, मैं तो ये मान करके चलता हूँ। बट फिलहाल the BJP is doing very well indeed. The BJP has ticked all the boxes. They're doing very well. They are like a well-oiled machine. You cannot fight them with the present methods. You are fighting the BJP with methods that may have been successful 30 years ago. अरे भाई आपको जरा जागना पड़ेगा,
you'll have to evolve. And all your traditional voters have gone off. Muslims have gone off. Dalits have gone off. Everybody is gone. Have gone off. अरे भाई It क्यों has ना gone जाए off, yes, sir. प्रदीप जी, मुसलमानों में जो पासमंदा मुसलमान है वो तो बीजेपी के पास चले गए। दलित जो है, महादलित जो है, और बाकी दलित में जो जितनी कैटेगरी हैं इंक्लूडिंग पासवान, वो तो बीजेपी के पास चले गए। आपके पास कौन बचा? कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, आपके पास बचा कौन? तो you'll have to get your constituency back, and you'll have to get your constituency back by actually doing work among them. और अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर भुगतिए। शाउट, स्क्रीम, ईवीएम, वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी करते रहिए, क्या होने वाला है? नहीं जीतोगे। That's my opinion anyway. In any event, very, very sad that a pilot lost his life in Dubai, Pradeep ji. That was absolutely terrible. Shouldn't have Very happened. bad. But it did. And I hope there will be a proper inquiry as to what really took place. और उसके अलावा अभी मोदी जी ने कहा है कि भैया हिंदुस्तानी इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को 10% से ग्रो करना है। व्लादिमीर पुतिन साहब आ रहे हैं यहाँ पे दिसंबर में, एंड वी आर ऑलरेडी रेडी टू साइन द न्यू सुखोई 57E डील, दैट इज द 5th generation stealth fighter, which is a competitor of the F-35 of the US Air Force, and far better, so I've been told, and it is far better anyway to have a deal with the Russians than with the Americans, because your supply lines are not going to be affected. Vladimir Putin, by the way, is a far more reliable supplier than the Americans can be. In fact, even Xi Jinping is a far better supplier and a far more reliable supplier than the Americans can ever be. Because the Americans, you don't never know, Trump might get up and say, hey, listen, stop all trade with India. क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते. There is no consistency, which is what people are complaining. कि अमेरिका के साथ अभी ट्रेड डील करने का मतलब है, ट्रेड डील आपने कर ली और 2 हफ्ते के बाद ट्रम्प साहब एकदम जागेंगे और कहेंगे बंद करो. मतलब क्या है? The delay in the engines for the Tejas is the greatest example. Yes, greatest example. There were 100 engines which were supposed to be coming over here from General Electric. Only 7 have come. सिर्फ 7 आए हैं अभी तक. And probably you delayed it for a decade. Yes. So at the end of the day, finally we'll have to go in for Russian engines or for French engines. One of the two. That's how, by the way, has the makers of Rafale, they've also applied for the same. In any event, the other good news is India is going to be building 2 more aircraft carriers. We already have 2. We'll have 4, maybe in 10 years. Of course, it takes a long time to make an aircraft carrier. And then for it to undergo all the tests, for it to be integrated into the Indian Navy. But all the same, we are thinking of a blue water navy, and we are actually working towards it, which is absolutely fantastic. Great. Well, that's just about it in tonight's show. Subscribe, yes sir. So subscribe जरूर करें channel को. Click on to the icon subscribe and you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और चैनल को शेयर करें अगर आपका दिल करे तो, लाइक करें अगर आपका दिल करे, और डिसलाइक करें अगर आपका दिल करे तो, ऐसी कोई बात नहीं. और अपने कमेंट जरूर भेजें भाई, अपने कमेंट भेजो. वी वुड लाइक टू हियर what you have to say, and help us to get to at least 1 crore viewers, as 1 crore subscribers and viewers as soon as possible. And we are also available on Facebook, on Instagram, and on X, and every other social platform. We are there. Very shortly, we'll soon be launching our Telegram and WhatsApp channels as well. So wait for that. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day, Mark. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.